السلام علیکم ناظرین، فوٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس طلب کرنے مشروط اجازت، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پیر کو ہوگا کابینی اجلاس۔ دو جون سے حیدرآباد مشترکہ دارالحکومت نہیں رہے گا۔ آندھرا کو الاٹ کی گئی عمارتیں اور ملازمین کی تقسیم کا عمل مکمل کرنے تلنگانہ حکومت کوشاں۔ تلنگانہ کانگریس کے نئے صدر کا بہت جلد ہوگا انتخاب، تیزی سے سرگرمیاں جاری، کئی قائدین دوڑ میں شامل۔ چھ مہینوں میں ریونت ریڈی حکومت نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، صرف عوام کو دھوکہ دیا ہے، KTR کا الزام۔ اور چٹیال منڈل میں 47 کلو گانجا ضبط، 5 افراد گرفتار، ریاستی آبکاری ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے حکومت تلنگانہ کو کابینہ کا اجلاس منعقد کرنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ حکومت نے ہفتہ 18 مئی کو کابینی اجلاس کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے اجلاس طلب کرنے کی اس دن اجازت نہیں ملی۔ اتوار 19 مئی کو الیکشن کمیشن کے پرنسپل سیکرٹری نے چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ کو مطلع کیا کہ ریاستی حکومت کابینی اجلاس طلب کر سکتی ہے، جس میں وہ انتہائی عاجلانہ نوعیت کے وقت مقررہ پر مبنی قابل عمل آوری موضوعات پر غور کر سکتے ہیں۔ ایسے موضوعات جن پر 4 جون تک انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ان ہنگامی و عاجلانہ نوعیت کے امور ہی اجلاس میں زیر بحث آئیں، البتہ حیدرآباد کی مشترکہ دارالحکومت اور فصل کے قرضوں کے معافی کے معاملات لوک سبھا انتخابات کے بعد ہی لیے جا سکتے ہیں۔
इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज को देखते हुए रियासती हुकूमत ने काबीनी इजलास की तलबी के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत के वो ओहदेदार जो इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात रहे वो काबीनी इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इन शराइत के ताबे इलेक्शन कमीशन ने रियासती हुकूमत को काबीना का इजलास तलब करने की इजाज़त दी है। इस दौरान रियासती हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त मिलने के बाद काबीनी का इजलास तलब करने का फैसला किया है। अब यह इजलास पीर यानी 20 मई को 3 बजे से पहर सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। 2 जून को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मुश्तरका दारुल हुकूमत से आंध्र प्रदेश का वक्त खत्म हो जाएगा। 2 जून को 10 साल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इसकी तैयारी में मसरूफ हैं कि तंजीम जदीद बिल के मुताबिक तेलंगाना के असासों को किस तरह हासिल किया जा सके। तंजीम जदीद बिल के मुताबिक 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद रखा गया था। हैदराबाद में मुख्तलिफ इमारतों को आंध्र प्रदेश के हवाले किया गया था। मुलाजिमीन की तकसीम शेड्यूल 9 और 10 के तहत जायदादें, खर्च और मुलाजिमीन की तकसीम होनी चाहिए। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि आंध्रा के इख्तियार में से बिल्डिंग्स को वापस लेने की तैयारी करें। इस सिलसिले में हफ्ते के दिन रियासती काबीना के होने वाले इजलास में तबादले ख्याल करने वाले थे, लेकिन इजलास को मुलतवी कर दिया गया। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 4 जून तक तंजीम जदीद बिल के बारे में बात करने से इनकार किया है, तो वज़ीर आला 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर क्या ऐलान करेंगे, इस पर तजस्सुस बरकरार है। रियासत में 2 जून को यौम तासीस प्रोग्राम को मुनक्किद करना जरूरी है। ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र 2 जून को वज़ीर आला के खिताब को लेकर अब तजस्सुस बढ़ गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के नए सदर के इंतखाबात के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पार्टी सतह पर बाज़ कायदीन इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। पता चला है कि टीपीसीसी के सदर का इंतखाब होगा। इम्कान है कि 4 जून से पहले ही नए सदर का ऐलान हो जाएगा। सदर की रेस में नायब सदर जग्गा रेड्डी, मधु याश्की गौड़, महेश कुमार गौड़, राजगोपाल रेड्डी, ए दियाकर के नाम ज़ेर गश्त हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक पता चला है कि ए दियाकर को पार्टी का सदर बनाया जाएगा। इसका इशारा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही दिया है। उन्होंने एक जलसे आम में कहा कि ए दियाकर को उनके बराबर का ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि ए दियाकर को असेंबली टिकट नहीं दिया गया और दीगर ओहदों पर तकर्रुरात के वक्त उनको नज़रअंदाज किया गया। दीगर कायदीन अपने तौर पर सदारत का ओहदा हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं। जग्गा रेड्डी, मधु याश्की गौड़ को एमएलए टिकट दिया गया था। इसके लिए उनके इम्कानात मौहूम हैं। दीगर जो नाम ज़ेर गश्त हैं वो पहले ही ओहदों पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि ए दियाकर को ही पार्टी सदर के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडिगड्डा बैरेज और सुंदेला बैरेज में शिगाफ पड़ने से मुताल्लिक एनडीएसए ने रिपोर्ट पेश करते हुए हुकूमत को सिफारिश की है। हफ्ते की शाम वज़रा ने इस रिपोर्ट का जायजा लिया। एनएसडीए रिपोर्ट के अहम निकात पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रोशनी डालते हुए कहा कि 2019 में बैरेज को खतरा लाहक था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर इसकी मरम्मत की गई तो इसके खतरे को टाला नहीं जा सकता। एनडीएस ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा है, वज़ीर आला ने कहा कि 1 महीने के अंदर मौसम बरसात का आगाज हो जाएगा। बैरेज को मजीद नुकसान न हो, इस सिलसिले में फौरन कोई फैसला लेने की आबपाशी ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि एक बार फिर मेडिगड्डा सुंदेला के पंप हाउस का जायजा लेने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि एल&टी कंपनी ने मरम्मत करने से इनकार कर दिया है। जो मरम्मत की जाएगी इसका पूरा खर्च हुकूमत को बर्दाश्त करना होगा।
इस सिलसिले में कल काबीना में बहस होनी थी, लेकिन काबीना इजलास को मुलतवी कर दिया गया था। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए अम्मा आदर्श स्कूल के तहत किए जाने वाले कामों की पेशरफ्त और धान की खरीदी से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अम्मा आदर्श स्कूल्स के कामों में तेजी पैदा करके काम जल्दी मुकम्मल करें। 12 जून को स्कूल्स की कुशादगी से पहले इन कामों को मुकम्मल किया जाए। शांति कुमारी ने कहा कि स्कूल्स की कुशादगी के दिन हर तालिब इल्म को नोटबुक्स, निसाबी कुतुब और एक जोड़ा यूनिफॉर्म फराहम किया जाएगा। इसको यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने कलेक्टर्स को हिदायत दी है। धान की खरीदी के मामले में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि धान खरीदी जो बाकी है इसको फौरन पूरा करें। खरीदी मराकज़ से धान की मुंतकिली को यकीनी बनाएं। इस मौके पर दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने 5 महीनों में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वरंगल, खम्मम और नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के के इंतखाब के सिलसिले में मुनक्किदा पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को कर्ज मुआफ़ी करने का ऐलान करके धोखा दिया गया है। अब तक किसानों के पास से धान की खरीदी नहीं की गई है। इन 5 महीनों में किसानों को परेशान करके रख दिया गया है। रेवंत रेड्डी की वजह से 6 लाख ऑटो ड्राइवर्स रोड पर आ चुके हैं। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने क्या किया है, इसका खुलासा करने के बजाय अयोध्या के राम मंदिर का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं। केटीआर ने कानून साज कौंसिल के लिए बीआरएस के उम्मीदवार राकेश रेड्डी के बारे में कहा कि वो सवाल करने वाले लीडर हैं और तालीम याफ्ता हैं। कौंसिल में तालीम याफ्ता शख्स होना चाहिए, कोई ब्लैकमेलर नहीं। రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రభుత్వం, ఆయన పార్టీ ఎన్నికలకు ముందు ఏం చెప్పింది, ఇలా ఏం చేస్తున్నది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మీరందరూ రైతు బిడ్డలు. ఏమన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు? నేను ముఖ్యమంత్రి అయితా ఉన్నా, డిసెంబర్ 9 నాడు నేను ముఖ్యమంత్రి కాగానే మొట్టమొదటి సంతకం పెడతా 2 లక్షల రుణమాఫీ మీద. మీరు ఎవరెవరైతే లోన్ తెచ్చుకోలేదో ఇప్పటిదాకా అర్జెంటుగా బ్యాంకుకు వండి, ఎంబడే వండి 2 లక్షల రుణం తెచ్చుకోండి, నేను సంతకం పెడతా, నా బాధ్యత రుణమాఫీ చేస్తా అన్నాడు. మరి డిసెంబర్ 9 పోయింది, జనవరి 9 పోయింది, ఫిబ్రవరి 9 పోయింది, మార్చి 9 పోయింది, ఏప్రిల్ 9 పోయింది, మే 9 కూడా పోయింది. తొందరలోనే జూన్ 9, 6 నెలలు కూడా నిండబోతా ఉంది. మరి మనం ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేదా? ప్రభుత్వాన్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదా? ఒక రైతు బిడ్డగా మళ్ళీ మోసపోదామా ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఒకసారి ఎవరైనా మనల్ని మోసం చేస్తే అది వాడి తప్పైతుంది, మోసం చేసినోడు తప్పైతుంది. కానీ రెండవసారి కూడా అదే వ్యక్తి చేతిలో మళ్ళా మనం మోసపోతే తప్పు మనదైతుంది. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోమని మా రైతు బిడ్డలైన మా అన్నదమ్ములందరూ నేను మనస్ఫూర్తి కోరుతా ఉన్నాను. ఎన్ని మాటలు చెప్పిండు, ఒక రుణమాఫీ మాత్రమే కాదు. కేసీఆర్ గారు రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు, నేను రైతు భరోసా ఇస్తా. కేసీఆర్ 10,000 ఇస్తే నేను 15,000 ఇస్తా అన్నాడు. మరి 15,000 పడ్డాయా లేదా నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत के 6 माह का अरसा हो गया है, लेकिन उनके वादों का कोई तस्करा नहीं कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम वोट नहीं देंगे, इस खौफ से भगवान की कसम खाते हुए 2 लाख रुपए कर्ज माफी के बुलंदबांग दावे किए गए, लेकिन इस पर अमलावरी करने के भी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर वादों का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। रियासत में बरखी कटौती का आगाज हो चुका है, रियल एस्टेट मुकम्मल ठप हो चुका है, वही पुरानी हुक्मरानी का आगाज हो चुका है। रकम देने पर ही काम हो रहा है, कम वक्त में ज्यादा बदुनवानी हो रही है। मुल्क के वजीर आजम और वजीर दाखिला ने भी कहा कि रियासत में RRR टैक्स वसूल किया जा रहा है।
पार्लिमानी इंतखाबात के बाद कौंसिल की ग्रेजुएट कोटा के इंतखाब की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस इंतखाब में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के दरमियान टक्कर का मुकाबला होने वाला है। खम्मम, नलगुंडा, वरंगल के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल और जांच का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस इंतखाब के लिए 52 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पर्चे वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की खतई फहरिस्त जारी की जाएगी। 25 मई को शाम 4 बजे तक इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम होगा। 27 मई को रायदही होगी। हुक्मरान जमात की तरफ से 3 मार मल्लन्ना, बीआरएस की तरफ से राकेश रेड्डी और बीजेपी की तरफ से प्रवेंद्र रेड्डी मुकाबला कर रहे हैं। इस हलके में 4,61,786 वोटर्स हैं। धरानी पोर्टल की कमेटी ने जून 4 तक ज़ेर-इल्तवा 1 लाख दरख्वास्तों की यकसुई का निशाना बनाया है। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने ताहाल 2,05,000 दरख्वास्तों में से 1,45,000 दरख्वास्तों की खुसूसी मुहिम के तहत यकसुई कर दी है। पार्लियामेंट के इंतखाबात की वजह से इस काम की अंजामदही में रुकावट पैदा हो गई थी, चूंकि रेवेन्यू स्टाफ को इंतखाबात के कामों के लिए मामूर किया गया था। हैदराबाद और इसके आस पड़ोस के अजला के अलावा रियासत के दीगर मुकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश रही। गुज़िश्ता 3 दिनों से रियासत के एक बड़े इलाके में तेज हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। आम तौर पर माह मई में दक्कन के इलाके में गर्मी अपने बामे उरूज पर रहती है, लेकिन तेज हवाओं और बारिश के सबब दर्ज हरारत में नुमायां कमी वाक़ई हुई। इतवार के दिन शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा अजला रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, मेदक, जंगांव, हनमकुंडा, महबूबाबाद के कई इलाकों में बारिश रही। जुनूबी शहर में बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। अजला में हुई बारिश से रबी फसल की धान, जिसे किसान आमतौर पर खुले मुकाम पर रखते हैं, भीग गई। इसके अलावा आम की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल तक तेज हवाओं और बादलों के घेराव का वक्फे से बरकरार रहने का इम्कान है। अजला के चंद मुकामात से बिजली गिरने की इत्तला मिली है। हुकूमत ने गैर मौसमी बारिश से निमटने जिले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की हैं। धान को भीगने से महफूज रखने टारपोलिन सरबराह किए जा रहे हैं और इस दौरान हुकूमत ने भीगी धान को भी खरीदने के इक़दामात का दावा किया है। मजलिस के पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में हल्का असम्बली कारवान की मोहम्मदिया मस्जिद वाक़े हकीमपेट कुंटा में आयत करीमा की महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, सैयद मतीन अली शाह कादरी ने शिरकत की। अहमद पाशा कादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील और अख्तरुल ईमान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की। मुकामी अफराद ने भी इस दुआइया महफिल में शिरकत की। हबीबनगर पुलिस ने एक खातून और उसके अफराद खाना पर हमला करने के इल्ज़ाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इसने नामपल्ली के साकिन सैयद नवीद, मोहम्मद इरफान, सैयद वसीम और सैयद माजिद और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मीन ने मुतासरा खातून मिर्ज़ा बेग और उनके फर्जंद समीर और दूसरे अफराद खाना वाजिद शरीफ और माजिद पर चाकुओं और लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें गहरी चोटें और जख्म आए। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुलज़मीन के खिलाफ केस दर्ज किया है। अलावाजी मुलज़मीन ने भी इस सिलसिले में हबीबनगर पुलिस में जवाबी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके मोहम्मद समीर, हुसैन शरीफ,
फेरोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। यहाँ हबीबनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में सेवक नगर बोल के एक एरिया है, वहां पे 17 तारीख के दिन 5 बजे रात के 9 बजे एक गड़बड़ हो रही, ग्रुप तैयार होके 100-200 आदमी तैयार होके मार ले रहे बोल के इंफॉर्मेशन आया। उसके ऊपर अपने SHO हबीबनगर वहां पे अपनी टीम को जाके वहां पे सबको कंट्रोल करे। कंट्रोल करने के बाद उसमें मालूम हुआ कि ऐसा समीर और नवीद, ये जो 2 ग्रुप है, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है बोल के वो लोग एक को एक मार लिए बोल के मालूम हुआ। तो उस सिलसिले में 2 केसेस रजिस्टर करे, एक समीर का ग्रुप, एक नवीद का ग्रुप। 2 ग्रुप में केस रजिस्टर करके हमारे हबीबनगर के इंस्पेक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ACP हॉस्पिटल की सदर सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन करके 2 केसेस रजिस्टर करके आज उन लोगों को पकड़ा गया और अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। आबकारी स्टेट टास्क फोर्स ने चटियाल मंडल के इलाके में छापा मारकर जायद 47 किलो गांजा, 1 लॉरी, 1 कार, 1 ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया है। टास्क फोर्स के मुताबिक इसने इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद में राजा बाबू, वी महतो, संजय विश्वास, बिट्टू रॉय और रजा खान शामिल हैं। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, SA कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी SA कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती काबीना का इजलास तलब करने मशरूत इजाजत। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीर को होगा काबीनी इजलास। दो जून से हैदराबाद मुश्तरका दारुल हुकूमत नहीं रहेगा। आंध्रा को अलॉट की गई इमारतें और मुलाजमीन की तकसीम का अमल मुकम्मल करने तेलंगाना हुकूमत कोशां। तेलंगाना कांग्रेस के नए सदर का बहुत जल्द होगा इंतखाब। तेजी से सरगर्मियां जारी, कई कायदीन दौड़ में शामिल।
6 महीनों में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ अवाम को धोखा दिया है, केटीआर का इल्जाम। और चिटियाल मंडल में 47 किलो गांजा जब्त, 5 अफराद गिरफ्तार, रियासती आबकारी टास्क फोर्स की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।